Hello children, Ravisa here. Welcome back to the second session of Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts, the second chapter in the history section of your social science textbook for class 10. Children, in this session we shall start with the traditional handicrafts of India, which includes various art forms such as clay work, art of weaving, art of embroidery, diamond work, bead work, enamel work, inlay work, jari work, aqiq work, leather work, metal work, and wood work. Children, in today's session we shall discuss the first three traditional art forms, that is clay work, art of weaving, and art of embroidery. So let's get started with the clay work first. Dear children, from cradle to grave, man's whole life revolves round clay. जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान की पूरी जिंदगी मिट्टी के ही इर्द गिर्द घूमती है. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. मेटल की खोज से पहले मिट्टी से बनी चीजों का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता था. In ancient times, clay was used to make bricks, toys, pots, lamps, fireplaces, vessels for keeping ghee, oil, milk, curd, and containers for storing grains. Many red color utensils have been discovered in India that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappan civilization. लोथल मोहेंजोदारो और हरप्पन सिविलाइजेशन की खुदाई में कई ऐसे लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है. The handmade clay utensils found from Nagarjunkonda in South India and Lagnach in Mehsana district prove that ancient India was famous for making utensils of baked clay and unbaked clay, terracotta. साउथ इंडिया के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए लग्नज में से भी कई ऐसे हाथों से बनाए मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत पकी मिट्टी के बर्तन और कच्ची मिट्टी के बर्तन, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं, इसके लिए मशहूर था. Potter's wheel is considered to be the best device for clay work in एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, पॉटर्स व्हील, कुंभार का जो चकड़ा होता है, व्हील होता है, वो बेस्ट डिवाइस क्ले वर्क के लिए माना जाता था. राइट. आफ्टर द क्ले वर्क, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड आर्ट फॉर्म, दैट इज आर्ट ऑफ वीविंग. Since ancient times, India is famous for its art of weaving. प्राचीन समय से ही भारत बुनाई के, वीविंग के आर्ट के लिए बड़ा ही मशहूर है. In ancient times, the weavers of Dhaka wove such a fine muslin cloth that would easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. प्राचीन समय में ढाका के बुनकर, वीवर्स, ऐसा फाइन मसलिन क्लॉथ वो बुनते थे कि वो बड़ी ही आसानी से एक अंगूठी में से, पूरे का पूरा कपड़ा वो अंगूठी में से गुजर जाता था. इतना ही नहीं, वो एक खाली मैच बॉक्स में भी समा जाता था. राइट. मोर ओवर, कारपेट से गालीचा ऑफ सेवरल रीजन्स, knitting work on attires, etc., occupied a prominent place in the world. इतना ही नहीं, कुछ प्रदेश की
गालीचा, कारपेट्स और कपड़ों के ऊपर की गई नीटिंग के लिए भी भारत पूरे विश्व में जाना जाता था. Among them, Patola of Patan, Kanchivaram and Banarasi sarees and Bandhani of Rajasthan are unique identity of India. The silkware produced in Patan is known as Patola of Patan. पाटन में बनाया गया रेशम की साड़ी उसे पाटन का पटोला नाम से वो जानी जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज बेवड इक्त, उसे बेवड इक्त के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा क्यों? बेवड मीन्स बोथ साइड्स एंड इक्त मीन्स वीविंग. Thus, bewad ikt means a sari worn in such a way that the same design is displayed on both the sides. यानी बेवड इक्त यानी पटोला एक ऐसी साड़ी होती है जिस पर दोनों तरफ से डिजाइन की जाती है और इसी कारण वो दोनों तरफ से वो पहनी जाती है. राइट और इसीलिए उसे बेवड इक्त भी कहते हैं. इन गुजरात द आर्ट ऑफ मेकिंग पटोला इज बिलीव्ड टू बी 850 years old. गुजरात में तो ये पटोला की जो कला है वो 850 सालों जितनी पुरानी है. During the golden period of Solanki king Siddharaj Jaisingh, many weavers came and settled in Patan and made it famous with their art of making patola. गुजरात में सोलंकी किंग सिद्धराज जयसिंह का जो समय था वो गोल्डन पीरियड माना जाता है. इस पटोला की आर्ट के डेवलपमेंट में इसे गोल्डन पीरियड माना जाता है क्योंकि इसी सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के समय में कई सारे बुनकर वीवर्स पाटन में आए और यहां पर ही वो स्थायी हो गए थे और इन्हीं बुनकरों ने वीवर्स ने उनकी पटोला की आर्ट से पूरे पाटन को पूरे विश्व में फेमस कर दिया. द पटोला हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स रिमेन इंटैक्ट. ये पाटन का पटोला है वो ज्यादा टिकाऊ होता है. इतना ही नहीं उसमें जो ओरिजिनल कलर्स जो किए गए होते हैं वो कलर्स भी ज्यों के त्यों रहते हैं और इसीलिए Therefore, there is a saying in गुजराती भाषा में एक कहावत है कि पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं. मीन्स द डिजाइन laid down in patola shall never fade even if the cloth may be torn. यानी ये पटोला का जो क्लॉथ होता है साड़ी होती है वो फट जाएगी लेकिन उसमें की गई डिजाइन कभी वो फेड नहीं होगी, फिक्की नहीं होगी. राइट. आफ्टर द आर्ट ऑफ वीविंग नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप दैट इज आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. Embroidery means the colorful designs worn on cloth. The art of embroidery is very ancient in India. The clothes of idols and statues found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro have the work of embroidery. हरप्पा और मोहेंजोदारो की एक्सकेवेशन में यानी खुदाई में जो आइडॉल्स और स्टैच्यूज मिले हैं
उन पर जो कपड़े पहनाए गए थे उन कपड़ों पर भी एम्ब्रॉयडरी का काम हमें देखने को मिलता है. Even the clothes of men, women and children found in the Sindh, Saurashtra and Kutch regions of Indus Valley civilization have the work of embroidery. सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ रीजन्स हैं, इन रीजन्स में भी कई सारे ऐसे कपड़े मिले हैं खुदाई में जो उस समय के मैन, विमेन और चिल्ड्रन पहना करते थे. उन कपड़ों पर भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क हमें देखने को मिलता है. कसब वर्क ऑफ कश्मीर इज वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. और एम्ब्रॉयडरी की बात आए बच्चों और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की बात ना हो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है जिसे दुनिया में कसब वर्क भी कहते हैं, और ये कश्मीर का एम्ब्रॉयडरी वर्क, कसब वर्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. Embroidery work of Jat community of Banni region of Kutch district is unique in itself. कश्मीर की तरह ही कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बन्नी रीजन में आई हुई एक कम्युनिटी है जिसे जाट कम्युनिटी कहते हैं. इस कम्युनिटी का भी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो भी यूनिक माना जाता है. The traditional art of embroidery, torans, chakda, pillow cover, bed sheets, shak, todalia, clothes like kedia is well known even today. So, dear children, in today's session we discuss the first three art forms, traditional handicrafts of India: clay work, आर्ट ऑफ वीविंग एंड आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. बच्चों ये सारे आर्ट फॉर्म्स इंडिविजुअली आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछे जाने वाले हैं. इतना ही नहीं, इनमें दिए गए कई ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन, अंदर ऐसे कई पॉइंट्स थे जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे, वो भी आपको 1 मार्क के लिए यूजफुल हो सकते हैं. राइट? So dear children, that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.